Welcome students, this is Manpreet Singh and welcome to you all in perfection classes for English. So students, as you know that we have discussed about in our previous lecture, our previous video, we have discussed about tense part and the parts or subparts, and after that we have done present simple and its structure, and today we will discuss about tense, but it's another part, that is present continuous. So students, as you can understand that continuous means a work which is at present at this time in its progressive condition, or it's going on at this time in present time. That condition always explain the continuity, or I can say the present continuous form. तो स्टूडेंट्स देखो, इसके अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी एक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो किस में एक्सप्लेन किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जब अपनी इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर अपने हिंदी के अंदर बात करें तो सेंटेंसेस के लास्ट के अंदर क्या लिखा होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये लिखा होता है, बट वी नीड टू लीव इट एंड नाउ वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन द इंग्लिश पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, दैट इज whenever we have in any kind of sentence. So before to tell, I need to write here some adverbs. So some adverbs which shows the times, so which shows the time, and if we are talking about adverb, then present continuous adverb is, first adverb is now, next is at present, next is at this time, after which currently, okay, now at present, at this time, and last but not the least, that is at this moment. Okay, these are the adverbs of present continuous, and these, whenever you see in any kind of sentence, these adverbs always you need to mention only and only continuous form. I'm not saying present continuous, so let's say that you need to mention continue sentence, you need to answer there as in continuity form. So let's see what happened in next. If we need to recognize our sentence and we need to know that of which part the sentence is, so let's see. If, so I need to write here a note for you. What is if there is an action for some time, or I can say a temporary work or action. A temporary work or action is also mentioned in present continuous. So students, for example, I am living in a rented house. So students, you can see the example that it shows a temporary action, that now he is living in a rented house, and after it where he will go we don't know and we can't say anything about it.
this is the identification of the present continuous tense. So our next one is according to the continuous form. We need to know that whenever we are talking about any kind of any activity which will happen in nearest future time, जो होगी, ठीक है, कब होगी, बहुत ही मतलब थोड़े समय बाद. फॉर एग्जाम्पल से पहले आप ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स और मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि टुडे है या फिर टुनाइट. दोनों के अंदर बात हो रही है आज की. टुडे भी आज है और टुनाइट भी आज है. अब दोनों के अंदर देखो, जब भी दोनों का यूज होगा एक एडवर्ब के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, हम कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे करेंगे वो देखो. जब अपने इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, whenever there is a sense of any kind of work which will happen in the nearest future, in the future time, and according to the sentence, the future time relates with the present sense, then we will mention continue tense. Let's see how. He is singing in a concert tonight. वो आज रात गा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, एक कॉन्सर्ट के अंदर. कब, आज रात. अब देखो मैंने कहा नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज करते हैं. ओके, जब अपने बात करते हैं नियरेस्ट फ्यूचर की, तो नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं. पर एक बात आपको बता दूं, वो नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर जो एक्टिविटी होगी, जो इवेंट होगा, वो फिक्स होना जरूरी है. ठीक है, अगर अपने ये बोले ही विल सिंग, वो गाएगा, बट यहाँ पर मैंने कोई टाइमिंग मेंशन नहीं. पर अगर मैं ये कहता हूँ ही इज सिंगिंग टुनाइट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो फिक्स एक वेन्यू हो गया, ठीक है, एक इवेंट हो गया, और उसके बाद टाइमिंग जो थी वो नियरेस्ट फ्यूचर की होगी, मतलब वो आज रात गाएगा. भूलना मत, जब भी हम नोट नंबर 2 की बात करते हैं, नोट नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है आप सामने अपने बोर्ड पर देख सकते हैं, और अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं. अब नोट क्या करना है, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही मैटर थोड़ा है, बट वेरी इफेक्टफुल फॉर यू. भूलना मत, फर्स्ट के अंदर तो सिर्फ एडवर्ब थी. अब सेकंड की बात करते हैं, तो नियरेस्ट फ्यूचर जो इवेंट होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. और नोट नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था टेम्पररी एक्शन. टेम्पररी एक्शन का एग्जांपल आपके सामने है, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करते हैं. देखो फ्यूचर टाइम हो गया, टेम्पररी एक्शन हो गया, हमने कुछ एडवर्ब्स भी कर ली, ठीक है. इसके बाद हम कुछ और बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की तरफ. मैं इसको इरेज कर दूँ, आप इसको नोट करना ना भूलें. ओके, एडवर्ब्स वैसी ही रहेंगी और मैं नोट इरेज कर रहा हूँ. अब हम डिस्कस करेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में. ओके, बिफोर इट वी हैव डन इन प्रेजेंट टेंस, we have done the structure with do or does, and now we will discuss, we will study how structure with is and are as a helping verb. So students, let's discuss about our structure. So our first structure is, as you know that our first structure is affirmative. Okay, and if we need to explain it, then we need to know how we can use this structure in our sentences. We must need a subject, and with the subject I need to mention here is am, are plus verbs fourth form. देखो verbs fourth form कौन सी है,
जब भी हम वर्ब्स फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं इसमें आता है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस, ओके। तो लास्ट में बच जाता है हमारा एक ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे स्ट्रक्चर की, वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर। देखो नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर वही बात होती है, पर मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर कराने से पहले आपको ये बता दूं कि हमें इस एमआर का यूज कब और किस तरह करना है। देखो जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारा जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेंशन कर देता हूँ। जब भी हमारे पास क्या होगा सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता है आई, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है आई, तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम को, ओके। और जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे, तीन सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए। पहला था आई, दूसरा है यू, तीसरा है वी और चौथा है दे। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं आर, इनके साथ आर का यूज होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में काउंट होंगे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, ठीक है, या कोई भी नाम जब हम मेंशन करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कौन सी। इस तरह हम हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ, सॉरी सब्जेक्ट्स के साथ इस एम आर का यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर और बाकी जो बचे होंगे साथ केस। अब हमारे सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेगेटिव की। ये यूं ही अप्लाई रहेंगे चाहे हम कोई किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, किसी भी फॉर्म में हो। सो लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। आप भूलना मत, वर्ब्स फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड स्ट्रक्चर की, वो है इंट्रोगेटिव सेक्शन। जब भी हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट की, ठीक है, इंट्रोगेटिव पार्ट के अंदर क्या होता है, इंट्रोगेटिव पार्ट के अंदर हमारा एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब देखो कैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, इस एम आर को हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है जो हमें ये बता देगा कि ये एक इंट्रोगेटिव पार्ट है। तो जब अपने इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इंट्रोगेटिव दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, इज एम आर और एक डब्ल्यूएच वर्ड। जब हम डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी बताया था कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर की, जो तो एफर्मेटिव हो गया। एफर्मेटिव के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव के अंदर ये स्ट्रक्चर रहेगा, इंट्रोगेटिव के अंदर दो स्ट्रक्चर हैं। अब चौथा यानी कि फोर्थ जो स्ट्रक्चर है, उस फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर हम मेंशन करेंगे हमारे इन दोनों स्ट्रक्चर के साथ, सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके लिखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेक्शन के जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान में मैं मेंशन कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके अंदर आज अपने एक ही स्ट्रक्चर लिखेंगे, दूसरा छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि दूसरे स्ट्रक्चर का यूज कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब्स फोर्थ फॉर्म
ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। भूलना मत कि मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर नोट का यूज़ किया है। इसके बाद हम इसी का एक सेकंड पार्ट जिसमें नोट इन्हीं के साथ लग जाता है, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह हम इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले स्टार्टिंग में हमने एडवर्ब की, फिर नोट फर्स्ट के अंदर मैंने कैपिटल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, नोट सेकंड जिसमें मैंने नियरेस्ट फ्यूचर की बात की, उसके बाद में मैंने स्ट्रक्चर बताए ताकि हम हमारे स्ट्रक्चर्स को इजीली लर्न कर सकें। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसी टेंस के अंदर, इसी पार्ट के अंदर। पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात फिर से याद करवा दूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, आपके सामने सब्जेक्ट और उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी टेंस के अंदर कुछ डिफरेंट बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इन स्ट्रक्चर्स को इजीली अपनी नोटबुक के अंदर कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसी ही रहेगी। अब डिस्कस करते हैं एक थर्ड नोट की जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस थर्ड नोट की बताने का रीजन क्या है वो ध्यान देखो। जब भी हम थर्ड नोट की बात करते हैं, नोट नंबर थर्ड जो है इसके अंदर देखो, हमारे कंटिन्यूस के अंदर हम हमारी उन एक्टिविटीज को कभी मेंशन नहीं करते जो मेंटली इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम बात करें मेंटली के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, if in a sentence there is a sense of, तो देखो वहां पर एक मतलब होना चाहिए एक सेंटेंस के अंदर। कैसा मतलब? पहला मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो मतलब होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए इंटेंशन। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंटेंशन की, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। ठीक है, और इसके बाद जब हम बात करते हैं एक, जब प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जब अपने इंटेंशन को एक्सप्लेन करते हैं, देखिए अब यहाँ तक ये सेंटेंस था, इफ इन अ सेंटेंस देयर इज अ सेंस ऑफ इंटेंशन, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, then we can use of continuous tense। नोट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ इन अ सेंटेंस देयर इज अ सेंस ऑफ इंटेंशन देन वी कैन यूज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो ये इसका यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इंटेंशन है, जैसे कि आई एम गोइंग टू सी माय ग्रैंडफादर, इंटेंशन क्या है? आई एम गोइंग टू सी माय ग्रैंडफादर। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई टाइमिंग मेंशन नहीं की, मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर देखो क्या है, क्या दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू सी, आई एम गोइंग कंटिन्यू को शो कर रहा है, टू सी यानी कि मिलना,
ये उसका इंटेंशन बता रहा है कि वो किस पर्पस से जाना चाहता है, मिलने के पर्पस से। किनको? ग्रैंडफादर को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंदर आप एक बात का ध्यान रखें, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, फॉर एग्जांपल जैसे एडवर्ब्स हुई, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 हुआ, उसके बाद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।